charts in MS Excel. That means what is a chart? Charts are the pictorial representation of the data. That data entered in MS Excel spreadsheet. Like हम spreadsheet में different types का data enter करते हैं. Like if you're making a report card, you entered a marks, classes, like this you can add. And if you want to making some type of account, you can add some price, some quantity. Okay, so these type data you can convert into a charts, and charts is a pictorial representation. Pictorial means we can represent the data with the help of picture. Graphs is like a picture, it's a pictorial representation. यहाँ पर आपको एक ग्राफ different types के होते हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. But first to understand what is the graph. Graph is a pictorial representation. That means पिक्चर की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में अपने डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं. डेटा वो किसी भी टाइप का हो सकता है. जो एमएस एक्सेल पे हम कैलकुलेशन टाइप कोई भी डेटा करते हैं उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर सकते हैं. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफर अ वाइड सिलेक्शन ऑफ चार्ट्स. if you see in a Microsoft Excel, you have a many types of chart we have in a MS Excel. काफी different टाइप के चार्ट्स हैं. काफी स्टूडेंट ने देखा भी है. I think in class 5th also some small concept of chart also available in class 5th also, I think, which help you to use your data in pictorial way. And in charts की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हमें किसी को शो करना है तो उसको हम शो कर सकते हैं. There are over dozen of charts types. That means dozen means काफी सारे charts available है. Each with several subtype. And every chart have a all subtypes. उनके subtype भी available है Excel के अंदर. Chart help you to make instant decision based on the comparison of number. Chart help you to make instant decision. With the help of chart, you see the data on the chart on the pictorial form, and you easily see the comparison. Easily comparison इसको देख सकते हो डेटा के अंदर कि नॉर्मल वैल्यू में इतना पता नहीं चलेगा, पर पिक्टोरियल में जब आप बार ग्राफ के अंदर देखोगे, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, that means you clearly see the picture, clearly see the comparison between the two type of data. Okay, it helps you to analyze and evaluate the worksheet conveniently. With the help of chart, you can analyze and evaluate the worksheet. आप इसकी हेल्प से अपने वर्कशीट, जो कि आपने वर्कशीट में डेटा क्रिएट किया किसी भी टाइप का, so with the help of chart we can analyze and evaluate the worksheet. Okay, हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं, उसे एवेल्युएट कर सकते हैं. दो वर्कशीट में कंपैरिजन को एवेल्युएट कर सकते हैं इजीली. As compared to simple presentation, charts are more attractive and appealing. If you use a chart in your MS Excel data or any type of data, that it's very attractive and appealing. That means बहुत attractive हो जाता है. एकदम से अगर आप किसी को पिक्चर्स फॉर्म में कुछ चीज शो करो तो एकदम से उसको उससे अट्रैक्ट हो जाता है कि ये डेटा कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है. अगर हम सीधा पेपर में किसी को नंबर्स लिख के दे देंगे तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा. बट अगर हम ग्राफ फॉर्म में उसी डेटा को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और अपीलिंग होगा. उसकी जो एक कह सकते हैं उसकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी चार्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट कर देंगे. Using the insert tab, where you add with the help of insert tab, we can add a chart or graph in a MS Excel. इसके लिए हमें insert tab की requirement होती है. I will show you with the help of example in MS Excel. You can choose from a variety of charts. आपको insert tab में variety of charts मिल जाएंगे, like column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart and scatter chart. ये जो कुछ टाइप है, इनके भी अपने सब टाइप्स अवेलेबल हैं Excel में. You can create a dozen of different charts in MS Excel. Yes, we can create a dozen of charts from pie chart to bar chart and more. Pie chart, bar chart and काफी सारे हैं. अभी स्टार्टिंग में हमने ऊपर नेम उनके पढ़े हैं कौन-कौन से चार्ट अवेलेबल है. And what we have, we can create a other type of chart also, like data series. It's the foundation of any chart. किसी भी चार्ट का एक फाउंडेशन क्या होता है? डेटा सीरीज. दैट मींस व्हिच टाइप ऑफ डेटा गिव इन अ MS Excel. लाइक हमने स्प्रेडशीट में किस टाइप का डेटा दिया है, किस टाइप की डेटा की सीरीज दी है. ओके, लाइक हमने कोई प्राइसेस दिए हैं किसी प्रोडक्ट के, या हमने कोई रिपोर्ट का टाइप डेटा दिया है. तो डेटा सीरीज बहुत फाउंडेशन है किसी भी चार्ट का. अगर डेटा सीरीज नहीं होगी तो चार्ट्स नहीं होगा. ओके, अगर आपको क्रिएट करना है कोई भी चार्ट तो पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा सीरीज होनी चाहिए. एक डेटा सीरीज इज द कंटेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स. एंड डेटा सीरीज होता ही क्या है? एक ग्रुप होता है रिलेटेड सेल्स का, सच एज वन रो और कॉलम ऑफ डेटा इन योर वर्कशीट. ओके, लाइक एक वन कॉलम, एंड अगर आपके में एक कॉलम है या एक रो है उसमें डेटा है तो वो भी एक डेटा कंसीडर होता है.
बेसिकली कितना डेटा है, लाइक नंबर ऑफ एंट्रीज आपने कितनी की हुई है, एक ही एंट्री है तो वो भी डेटा है, अगर मल्टीपल एंट्रीज है 100,000 वो भी डेटा के अंडर ही काउंट होता है। नेक्स्ट इज डेटा ऑब्जेक्ट्स। चार्ट्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। एंड चार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, यूज करते हैं हम, तो उसमें उन्हें बोलते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स। उनको हम आगे देखेंगे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, आगे चैप्टर में एक एक सब ये चीज क्लियर होती चली जाएंगे आपको, और प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। Customize chart. You can customize any chart you create in MS Excel. Yes, we can customize it very easily. If you change the value, your chart pattern is changed automatically. Like अगर आपने अभी बार चार्ट बनाया, सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं बार चार्ट या पाई चार्ट, एन चार्ट you make in your MS Excel, and if you see the some data bar is increase and some data bar is decrease, like थोड़ा आपको ऊपर नीचे कंपैरिजन दिख रहा है, तब अगर डेटा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चार्ट का बार ऊपर नीचे हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब डेटा की वैल्यू चेंज करनी है। चेंज द चार्ट टाइप एंड डू मच मोर, एंड आप चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हो, लाइक अभी आप सेम डेटा पे बार चार्ट यूज कर रहे हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप पाई चार्ट भी यूज कर सकते हो, ओके, एट अ टाइम। आप उसको चेंज करके कोई कॉलम चार्ट भी यूज कर सकते हो, लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं है कि आपने एक बार चार्ट यूज कर लिया अब दूसरा चार्ट यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द चार्ट? इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। बेसिकली पिक्चर को देख के एकदम क्लियर हो जाता है चार्ट, जब हम चार्ट और ग्राफ देखते हैं। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना केसेस बढ़े थे तो आपको टीवी में या न्यूज़पेपर में बार चार्ट, लाइन चार्ट की फॉर्म में केसेस को दिखता था, कि कंपैरिजन होता था किस स्टेट में कितने केसेस है, या कोई भी आप अगर स्कूल का रिजल्ट हम देखें तो वो भी अगर ईयर बाय ईयर देखें तो अगर इस फॉर्म में दिखा है तो बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाता है कि इस साल इतना था, इस साल इतना था। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल वे है किसी को कुछ समझाने की, तो बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। जिसे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है वो भी सिंपल देख के, पिक्चर को देख के समझ जाएगा कि ये क्या सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है। With the help of chart, data information can be presented in attractive manner. With the help of chart, चार्ट की हेल्प से अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को हम बहुत अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमने अभी ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, इसकी जो अपीलिंग, जो उसका चार्ट बहुत अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग होते हैं, इनका जो इंप्रेशन होता है बहुत ज्यादा पड़ता है सामने वाले पे जब भी अपनी डेटा को चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है, बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। इसका पहला एडवांटेज यही है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, एंड इसलिए अट्रैक्टिव भी है। अगर समझना आसान है इसलिए अट्रैक्टिव भी है। अट्रैक्ट लोग किससे होते हैं? जो उनको समझ में आ जाता है इजीली। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप उससे अट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। थर्ड इज as compared to a simple data statement, a chart is more impressive and informative. अगर सिंपल डेटा स्टेटमेंट को देखें, चार्ट इंप्रेसिव भी है, बिल्कुल इंप्रेसिव है। एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड की वजह से अट्रैक्टिव हो गए हैं, एंड जब अट्रैक्टिव हो गए तो हम उससे इंप्रेसिव हो जाते हैं। सिमिलर देखो कितने अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट किया इन्होंने चार्ट्स की फॉर्म में, देखो इन्होंने पाई चार्ट कितने अच्छे से यूज किया हुआ है। ओके, टेक्निक होती है डिफरेंट डिफरेंट, ये तो जब आप चार्ट्स का यूज करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा चार्ट यूज करना ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेशलाइज है कि यहाँ पर यही वाला चार्ट यूज होगा, नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, so next is types of chart. We have a different type of charts, so we discuss some charts, some types there. Like first is column chart. You see the column chart in front of you. Okay, so column chart. This chart displays the data change over a period of time. Like इसमें 3 स्टूडेंट का आप ग्राफ चार्ट देख रहे हो, इसमें कॉलम चार्ट देख रहे हो, इसमें 3 स्टूडेंट का डेटा रिप्रेजेंट कर रखा है पर सब्जेक्ट वाइज। ओके, विद मार्क्स ऑन द लेफ्ट साइड जो इसकी एक्सिस है, कॉलम, अगर इसकी कॉलम में देखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 100 तक, एंड नीचे सब्जेक्ट वाइज है। एंड ब्लू रिप्रेजेंट हरीश, रेड रिप्रेजेंट सुमन, एंड ग्रीन रिप्रेजेंट आलोक। एंड आप क्लियरली देख सकते हो इनके इनमें डिफरेंस कितना है। आपको सीधा सामने दिख रहा है कि हिस्ट्री में सुमन के मार्क्स सबसे ज्यादा है, मैथ में आलोक के मार्क्स सबसे ज्यादा है। सिंपल ग्राफ को देखकर हम इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर ये चार्ट किसी को भी शो करे, किसी अननोन पर्सन को भी, वो क्लियरली देख के पिक्चर को बता देगा कि किसके मार्क्स किस पे ज्यादा है और किसके मार्क्स किस में कम है या किस में इक्वल है। ओके, एंड इफ यू सी द साइंस में सुमन के ज्यादा है, एंड इफ यू सी द इंग्लिश में हरीश के ज्यादा है। तो क्लियरली पिक्चर देख के सारी पिक्चर क्लियर हो गई। इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी है समझना। तो इसलिए फ्रॉम दीस फीचर्स द चार्ट्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इज अट्रैक्टिव आल्सो।
ओके, अगर हम डेटा इस टाइप से रिप्रेजेंट करें तो कंपैरिजन करना कितना इजी हो जाता है। चार्ट्स बेसिकली वी यूज टू द कंपैरिजन, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको यही करके दिखा देता हूं, जो हमने अभी ये सामने बना रखा है इसको मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में अभी दिखा देता हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पर 3 स्क्वायर लेते हैं सर, जो इसके ऊपर एक सर्कल में बार ग्राफ दिया है सर, वो कौन सा है? अभी बेटा अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा सारी पिक्चर। हम एक छोटा जो बिल्कुल पिक्चर में आपको सामने दिख रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम 3 बच्चों के नाम लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते जिन्होंने लिखे, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। दीपक, अमित and Shalini, create on it, and after that on this data we create a chart। हम डेटा पे सिंपल एक चार्ट क्रिएट कर देंगे। लाइक ये तो आपके हो गए हिंदी के मार्क्स हो गए, ये हो गए आपके इंग्लिश के इन बच्चों के, एंड दिस इज अ साइंस, मैथ, एंड दिस इज मैथ। Okay, and now I want to add a chart on this number, on this data. Okay, first select the data. Okay, then click on insert, and insert we have a chart. We have a chart, different types of chart. Okay, like 2D, 3D, you have a different type of data like this. You see the difference between, you see the data in front of you, you see the simple comparison। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया, चार्ट ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गया। हमने चार्ट सिलेक्ट किया, कोई भी एक चार्ट सिलेक्ट किया। कैन आई शो? या डेफिनेटली आई शो। सर, इसे देखकर मुझे डाटा हैंडलिंग की याद आ रही है। यस बेटा, इट्स लुक लाइक दिस, डेटा हैंडलिंग। विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वी कैन डेटा हैंडलिंग आल्सो। हम डेटा हैंडलिंग भी एक्सेल की हेल्प से ही करते हैं, अगर कंप्यूटर में करते हैं जब भी। ओके, हमने ये चार्ट हटा दिया, हम दूसरा चार्ट लेते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया है चार्ट को। आई शो यू द 3D वन। दिस इज द 3D। Okay, this is 3D chart. Okay, you see the simple, see the comparison। आपको डेटा में तो रीड करना पड़ेगा कौन कम है कौन ज्यादा है, बट आपको सिंपली अगर आप चार्ट को देखोगे, वेट बेटा वेट, आपको सिंपली पता चल जाएगा हिंदी में किसके मार्क्स ज्यादा है, इंग्लिश में किसके मार्क्स ज्यादा है, साइंस में किसके ज्यादा है, एंड मैथ में किसके ज्यादा है। एंड ये ऐसा नहीं ज्यादा ही पता चलेगा बेटा, आपको सिंपल दिख रहा है सामने। आप सिंपल पिक्चर में देख के, सामने चार्ट में देख के पता कर सकते हो। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको सिंपल देख के क्लियर हो जाएगा कि किसमें किसके मार्क्स आते हैं। जैसे बुक में आपको एग्जांपल दिखा रखा है ना, सेम लाइक दिस आपको ये चार्ट में भी शो हो रहा है कि किसके मार्क्स किस में आते हैं। लाइक ब्लू रिप्रेजेंट दीपक, अमित रिप्रेजेंट सैफरन, एंड शालिनी रिप्रेजेंट ग्रे। तो आपको सिंपल नीचे डेटा आपका सामने है, आप सिंपल डेटा क्रिएट करो और उसको चार्ट में कन्वर्ट कर दो, बहुत इजी है। साइंस की शालिनी के ज्यादा है। Yeah, I think. Yeah, with the help of this, you can change color also. You can change color also like this, like this, like color also. Yes. Now this, I changing the color. This. Okay. बेटा कोई मजाक चल रहा है यहाँ, आप खुद कर लेना। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ना, अब मुझे आगे भी चलना है अभी। लैपटॉप में था कंप्यूटर में? बेटा लैपटॉप कंप्यूटर सेम ही होता है, बस लैपटॉप पोर्टेबल होता है, कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है, वो आप इजीली मूव नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस नहीं होता डेस्कटॉप लैपटॉप में। सर इन चार्ट्स को ना सर हमें सेलेक्ट करके करना पड़ेगा सर? बेटा सिंपली फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा एंड इंसर्ट एनी चार्ट। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, अगर आप डेटा सेलेक्ट भी नहीं करोगे ना, सीधा इंसर्ट पे जाओ और कोई भी चार्ट, जैसे मुझे मान लो मुझे इसमें लाइन चार्ट लगाना है लाइक दिस। ओके, यू सी, जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करोगे ये कुछ नहीं दिखाएगा। कुछ तो होना चाहिए, इसे भी तो किसी पे वर्क करना है। फर्स्ट सिलेक्ट अ डेटा एंड देन इंसर्ट अ एनी चार्ट लाइक दिस। मैंने इसमें लाइन चार्ट लगा दिया, पाई चार्ट आल्सो, पाई चार्ट इज देयर। यू सी द पाई चार्ट? यस सर। यस सर। ओके, इसमें सिंपल ये पाई चार्ट है, इसमें पर स्टूडेंट का दिख रहा है। लाइक ये दीपक का दिख रहा है, एक स्टूडेंट का दिख रहा है। ओके, आप इसमें पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का देख सकते हो एक बार में, बिकॉज ये दीपक के मार्क्स का बाइफरकेशन है। बेसिकली कंपैरिजन के लिए ज्यादातर हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं, बिकॉज में तीनों के कॉलम्स क्लियरली दिखते हैं सामने हमें एक टाइम में। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। ओके, ऑफ कर देते हैं इसे। ओके okay, so now you understand what is the column chart and how to insert the column chart।
Okay, this is the data which change over a period of time. अगर मैं इसमें मार्क्स को चेंज करता हूँ, अगर अभी मैंने इंसर्ट चार्ट डेटा इंसर्ट किया हुआ था, चार्ट इंसर्ट किया हुआ था, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ. You see, if I change the marks, first I insert the chart again. Okay, अगर मैं देखो आप डेटा का ग्राफ देख रहे हो, अगर मैं वैल्यू में चेंज करता हूँ, you see the Amit marks is this time 56. Okay, and Amit represent in signs with a saffron. Okay, अगर मैं इसके मार्क्स 95 कर देता हूँ, you see ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, उसका लाइन अपने आप बाहर उसका ऊपर चला गया. दैट मींस आप इसमें इजीली मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आप डेटा चेंज करोगे वैसे ही जो बार होता है, कॉलम होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे चला जाता है. इतना हार्ड नहीं है इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बार चार्ट. ओके, so what is a bar chart? Bar chart can be represented in a tabular format. बार चार्ट हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? टैबुलर फॉर्मेट है. इन्होंने देखो सेम डेटा पे बार चार्ट लगा रखा है. आपको हम सेम डेटा पे बार चार्ट भी लगा के दिखाएंगे. अगर हम सेम डेटा यूज करते हैं, सिलेक्ट दैट डेटा एंड नाउ सिलेक्ट अ बार चार्ट. You see, this is a column and bar chart. Bar chart is there. The bar chart. Okay, you see, it's a bar chart. It's simply like a column, but now column is a horizontal now. कॉलम कैसे हो गए? हॉरिजॉन्टल हो गए. मार्क्स वाला सेक्शन नीचे आ गया, सब्जेक्ट वाला साइड में आ गया, वर्टिकली आ गया. तो इस टाइप से हम डेटा को इस चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड बार चार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड टैबुलर फॉर्मेट, या फिर टैबुलर फॉर्मेट है, एज वेल एज इन द पैटर्न ऑफ कॉलम. दिस चार्ट शोज डेटा. यस बेटा. So when you select a chart, so there's three options: a painting and a filter. So and their option are add. So what we can do? Add means you can change the axis. Like grid line चाहिए, नहीं चाहिए, grid line हट जाएगा. You can modify it with that, like this. You see the changes? Okay, sir. Okay. आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो. डेटा लेबल चाहिए आपको, डेटा लेबल आप लगाओगे तो डेटा लेबल आ जाएगा. You see the data label also. Okay, if you choose the x axis now available, आप यहाँ axis लगा सकते हो, टाइप कर सकते हो axis में. ये सिंपली आप चेंजेस है आपने क्या चेंजेस आपको करना है. ओके, अगर कुछ हटाना है आपको तो क्लियरली यू कैन. डेटा लेबल्स हटा दिया, डेटा लेबल्स हट गए हैं. ओके, सो you know what is bar chart now? This chart show the data change also. Data change in column chart we also see the data change, and in bar chart we also see the clearly data change. दोनों में हमें data change बहुत easily दिख रहा है, comparison भी बहुत easily दिख रहा है कि what is the comparison. Okay, next is line chart. Line chart is look like this. You see the line chart. Line chart can display continuously data over the time, like in which you see the lines moving on the data. So line chart can display continuous data over the time. Like हम टाइम के अकॉर्डिंग में डेटा को ऊपर नीचे कर सकते हैं. सेम लाइक हम बार चार्ट में भी कर सकते हैं. सब डेटा का रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है. लाइन चार्ट में आपको लाइंस मिलेंगी मूव करती हुई, like on this form you can see in the picture. I also show you showing in the Excel also. Set against a common scale and therefore ideal for showing trends in data at equal intervals. बेसिकली जब भी हम ट्रेंड शो करना होता है, लाइक किस टाइम में मार्केट, बेसिकली जब भी हम मार्केट शेयर मार्केट टाइप देखते हैं तो वो लाइंस की फॉर्म में लाइन चार्ट में शो करता है हमें कि अब ये कंपनी के शेयर नीचे गए लाइन की फॉर्म में, फ्री ऊपर आ गए लाइन की फॉर्म में, जैसे इनके मार्क्स इन्होंने शो कर रखे हैं. The category data is distributed. That means time के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स कैसे अप एंड डाउन गए. लाइक इस सब्जेक्ट में इतना था, इस सब्जेक्ट में इतना था, इस सब्जेक्ट में इतना था. Okay, so trending data at equal interval in a line chart, the state category is distributed evenly along the horizontal axis. जो कैटेगरी है वो horizontal axis में मिलेगी, like history, math, science सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं. वैल्यूज का मिलेंगी vertical axis पे. Okay, 2 axis होती है चार्ट में. कोई भी चार्ट आप देख लो, बेसिकली पाई चार्ट को छोड़कर, एक तो वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, अभी हम लाइन चार्ट लगा के देखते हैं सेम डेटा में. डेटा एंड दिस इज अ insert and this is a line chart. You see the line chart and now you see the difference between the line chart, bar chart and column chart. This is a line chart. You see the marks distribution.
लाइक बच्चे की अगर हम सैफरन वाली लाइन को देखें, सैफरन लाइन रिप्रेजेंट द अमित, एंड द अमित मार्क्स फर्स्ट इज 65 एंड देन इंक्रीज इज अगेन 65, थोड़ा आगे तक इंग्लिश तक 65 ही रहे, फिर जब वो साइंस में गया, साइंस में उनके इंक्रीज हो गए, कहां तक चले गए 95 तक, तो लाइन ऊपर की तरफ चली गई 95 की तरफ। एंड मैथ में गए तो नीचे आ गई दोबारा, क्योंकि मैथ में मार्क्स 76 है। लाइक दिस यू कैन सी द अदर स्टूडेंट मार्क्स आल्सो। अगर आप इसमें डिफरेंट स्टूडेंट ऐड कर दोगे तो लाइंस ये इसमें ऐड हो जाएगी और ज्यादा। अगर मैं इसमें आपको एक बच्चा एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाता हूँ, आई ऐड लाइक अभी बच्चा ऐड कर लेते हैं, एंड हम इस मार्क्स इज लाइक 65, 54, 65 एंड 90। ओके, दिस इज द मार्क्स ऑफ अभी। हमने एक एक्स्ट्रा ऐड बच्चा कर दिया इसमें, and now represent the line chart, and now you see the 4 lines. Okay, this another again the yellow line represent the abhi। अगर आप एक डिफरेंट और बच्चा ऐड कर दोगे तो ये लाइन और बढ़ जाएगा, एक और लाइन आ जाएगी। ओके, तो यू क्लियरली सी द डिफरेंस। अगर आप क्लियरली लाइन चार्ट को देखोगे तो आपको इसमें भी डेटा पता चल जाएगा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इन व्हिच द लाइन रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, नाउ यू सी द मार्क्स 65 से मार्क्स चले, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लाइन अप एंड डाउन हो रहे हैं। अगर पहले 67 है और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं तो लाइन अप जाएगी, एंड अगर डाउन हो गए हैं तो लाइन डाउन जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। एरिया चार्ट इज लुक लाइक दिस। इट डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। ओके, ये मैग्नीट्यूड चेंजेस है लाइक द लाइन चार्ट, इट डिस्प्ले लाइक दिस। बट लाइन चार्ट में लाइन चलता था, इसमें पूरा एक सेक्टर चलता है। You see the coloring, पूरा कलरिंग हो गया है इसमें, डिफरेंट पूरा कलरिंग शो होता है बच्चे का डेटा जिस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स आल्सो शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू होल बाय डिस्प्लेइंग सम ऑफ प्लॉटेड वैल्यू। ओके, इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा कि किस तरह से शो हो रहा है, बहुत क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे इसे। इसमें एरिया चार्ट हम लगाते हैं। ओके, दिस ओके, दिस लुक लाइक दिस। दिस इज द एरिया चार्ट। Okay, its area chart look like this. You can add the title also. अभी चार्ट टाइटल में कोई टाइटल नहीं है, सब चार्ट में आता है ये। आप यहाँ पर चार्ट भी टाइटल भी ऐड कर सकते हो, लाइक मैंने इसमें ऐड कर दिया स्टूडेंट मार्क्स कंपैरिजन। Okay, you can add title also. Okay, now you see it's look like the waves। जैसे हम अर्थ की लेयर होती है ना, कुछ इस टाइप से शो कर रहा है कि नीचे वाली लेयर फिर उसके ऊपर वाली लेयर इस टाइप से शो कर रहा है, तो इसमें सबका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है ये। ओके, इन व्हिच द दीपक इज ब्लू, अमित इज saffron and Shalini is gray and Abhi is yellow, and you see the difference of the comparison of the marks between among them, like किस टाइप से इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनके बीच में। ये टोटल पे चल रहा है, ये किस पे चल रहा है, ये टोटल पे चल रहा है। ओके, द स्टूडेंट द एरिया चार्ट इज लुक लाइक दिस। इट्स बेसिकली द होल रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू द होल बाय डिस्प्लेइंग सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यू। ये क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज होती हैं इन सबका सम कर देता है, लाइक सारी वैल्यूज का इन्होंने सम कर दिया, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया एरिया चार्ट में। ओके, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा समझने में, बिकॉज हर चार्ट अपना अलग अलग फीचर्स होते हैं हर चार्ट के। Okay, every chart is different from the other chart. Okay, basically आपको लगाना आना चाहिए। मैंने आपको पाई चार्ट भी लगा के दिखाया था अभी पीछे। पाई चार्ट लाइक सेपरेट शो करता है, लाइक हरीश का शो कर रहा है सिर्फ, ऐसे आपको सेपरेटली शो करेगा। दिस चार्ट हैज अ शेप ऑफ द राउंड पाई। ये पाई की फॉर्म में शेप करता है, राउंड शेप में होता है इसकी, बेसिकली सर्कल बोल सकते हैं हम, सर्कल शेप होती है इसकी। पीसेस ऑफ स्लाइस, इस स्लाइसेस की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू, टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट टू ओवरऑल पाई। एंड ये डेटा को पूरा ओवरऑल पाई की फॉर्म में डेटा को फैला देता है, एंड उसमें अलग अलग सेक्शंस बढ़ जाते हैं। जो डेटा ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा पाई का पार्ट हो जाता है, उतना ही बड़ा पीस हो जाता है एक तरह से। वन डेटा सीरीज इज शोन इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स, लाइक जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा जिस कलर का, और वो कलर जिस सब्जेक्ट को या जिस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पाई में पार्ट ज्यादा होगा, दैट मींस उसकी डेटा वैल्यू ज्यादा है। The data points in a pie chart display as the percentage of the whole pie, and basically you understand the whole pie percentage is 100%, and इसी की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है। like
if I divide the 100%, like मार्क्स 4 सब्जेक्ट के मार्क्स में 100% में काउंट कर लिए, तो उसमें से 100 में से 25% हिस्ट्री का है, 30% मैथ का है, ऐसे ही टोटल पूरा पाई में कंपैरिजन चार्ट आपको शो करता है। पाई चार्ट मैंने आपको अभी लगा के भी दिखाया था, मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ कैसे शो करता है पाई चार्ट। इट्स लुक लाइक दिस। मैंने आपको बताया था वी कैन इजीली चेंज द चार्ट विद द डिफरेंट। अब मैंने बिना उसे डिलीट किए मैंने दूसरा चार्ट यूज कर लिया, वो क्लियरली आपको शो कर रहा है। ये सेपरेट 1 by 1 एक एक चार्ट एक बार में दिखाता है, लाइक जैसे अभी दिखा रहा है आपको। ओके, लाइक अभी दीपक का शो 3D pie chart. Yeah, 3D chart, pie chart we can insert easily, not a problem. अब चार्ट कोई सा भी यूज करो, आपको कुछ नहीं करना, डेटा सिलेक्ट करना है एंड चार्ट, एनी चार्ट यू कैन यूज लाइक दिस। ओके, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी होता है डेटा चार्ट को रिप्रेजेंट करना। ओके, यू सी दैट like if you see the marks of Deepak, Hindi, English, Science, Math, दीपक के सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? अगर आपको अगर अदर स्टूडेंट का ग्राफ देखना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लाइक डेटा जिसका आप डेटा यूज करोगे, जिसका भी डेटा सिलेक्ट करोगे उसी का आपको पाई चार्ट शो हो जाएगा। You see the Shalini? Now this is the Shalini chart. Okay, the subject represented by the सबसे ज्यादा मार्क्स शालिनी के साइंस में है। Okay, and the science represented by the gray. एंड सबसे ज्यादा पार्टीशन किसका है? ग्रे का ही। इस पाई में सबसे ज्यादा पार्ट आपको ग्रे का मिलेगा। यू सी दैट अगर आप किसी भी कलर पे अपने कर्सर को ले जाओगे तो आपको शो भी करेगा कि कितना परसेंट ये टोटल पाई को कवर कर रहा है। लाइक ग्रे पार्ट इज कवर द 34%, एंड इफ यू सी द सैफरन पार्ट इट्स कवर 20%, इफ यू सी द ब्लू पार्ट इट्स कवर 25%, एंड इट शो द वैल्यू आल्सो लाइक 67। ओके, and the yellow part cover the 21%. So the percentage किसका है इसमें? ग्रे पार्ट का है, because this is the highest marks on the all subjects. Okay, and every single person and every single student you can see look like this. आप सिंपल कर्सर को मूव करके डेटा को देख भी सकते हो। This is the pie chart. Donut chart. It's shape of donut. It consists of more than one data series. इसमें एक से डेटा सीरीज आपको मिलेंगी। In this chart, each ring represent one data series. Every ring is represent a one data series. Like एक इसमें टोटल देखो 3 स्टूडेंट है तो 3 रिंग दिख रही है आपको। ओके, अगर मैं 4 स्टूडेंट करूंगा तो 4 रिंग हो जाएगी, एंड जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसका ही कलरिंग पार्ट ज्यादा होगा। ये भी आपको दिखा देते हैं, एंड दे शो द रिलेशनशिप आल्सो द होल पार्ट। डोनट चार्ट यूज कर लेते हैं इसमें, आपको भी क्लियर हो जाएगा। Select the data and now move on a donut chart. This is the donut chart. Okay, and you clearly see the picture. What is a donut chart? अब simply अगर हम सबसे अंदर वाली रिंग एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाहर वाली एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल 4 रिंग है, and every ring represent the single student. Like if you move the cursor, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको क्लियरली दिखाई देगा, बड़ा कर देते हैं इसे। If you move the cursor on a single ring, like this ring is a Deepak, this ring is a Shalini, and the third ring is Abhi, and the fourth ring is, I think fourth ring is Abhi, and the third ring is Shalini and Amit. Where's the Amit? Amit, and the one is the Deepak. Okay, so you know the data distribution also, like जिसमें मार्क्स ज्यादा है वही कलरिंग पार्ट ज्यादा हो जाएगा, like a pie chart. जैसे pie chart में था, लाइक उसमें ग्रे में ज्यादा मार्क्स थे तो ग्रे वाला पार्टीशन ज्यादा हो गया था। ऐसे ही सेम इसमें होता है आपका, एंड इसमें भी आप डिफरेंट टाइप्स के चार्ट स्टाइल अवेलेबल है, आप जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ से, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर आपको सिंपल परसेंटेज भी शो कर रहा है। तो डेटा कंपैरिजन इसमें बस ये आइडेंटिफाई, अगर आप कर्सर को मूव नहीं करोगे तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा रिंग किसका है। बेसिकली सिंपल देख के पता नहीं चल रहा है, बिकॉज स्टूडेंट के नेम नहीं आ रहे हैं, आपको इसके लिए कर्सर मूव करना होगा। बट अदर थिंग दैट पाई चार्ट सेपरेट सबका अलग अलग बनता है, इसलिए वहां आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ओके, एंड चार्ट टाइटल का आपको पता ही है, यू कैन सिंपली क्रिएट अ चार्ट टाइटल, एनीथिंग यू कैन, इफ यू वांट टू ऐड एनी चार्ट टाइटल यू कैन ऐड इट। ओके, ऐसा नहीं है कि चार्ट से आप पाई चार्ट आप इस पर ही लगा सकते हो, जो डेटा था हमारे पास, आप चार्ट किसी भी डेटा में लगा सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, स्कैटर चार्ट।
the scatter chart and the line chart are almost similar. ये बोल रहे हैं कि जो स्कैटर चार्ट है एंड जो लाइन चार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों सेम है, बट द स्कैटर चार्ट इज डिस्प्ले द स्क्रिबल इन लाइन. ये आपको स्क्रिबल दिखाएगा, लाइक बताएगा कि मार्क्स कहां पर शो कर रहे हैं. यू सी द स्क्रिबल इन बिटवीन द लाइंस, लाइक इट्स लाइक अ स्टॉपेज. लाइक ये मार्क्स हिंदी का है, ये मार्क्स इंग्लिश का है, ये आपको स्टॉपेज टाइप दिखा रहा है. वेयर द लाइन चार्ट यूजेस द कनेक्टेड लाइंस टू द डिस्प्ले लाइंस. यहाँ पर आपको लाइन चार्ट में अप एंड डाउन मिलेंगे, अप एंड डाउन में मिलेंगे, बट आपको इसमें स्क्रिबल मिलेगा, जगह जगह स्टॉपेज टाइप लगा रखे हैं. इस चार्ट को हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे शो होता है स्कैटर्ड चार्ट. इंसर्ट अ स्कैटर चार्ट. This is the scatter chart. You see the scribble? This is the scribble. See the dots on the every line, on the marks. और ये dots कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर marks है. It simply look like the line chart. लाइन चार्ट की तरह ही है, बट इसमें स्क्रिबल्स है बीच बीच में. ओके, और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर. यस बेटा. सर स्क्रिबल्स को मूव कर सकते हैं? बेटा कैसे मूव करोगे आप नहीं कर सकते. ये तो जहां पर आपके मार्क्स हैं ये वहीं पर शो करेगा आपको. लाइक इंग्लिश वाली जगह पे स्क्रिबल आ रहा है, बस साइंस की जगह पे आ रहा है, मैथ में आ रहा है. ऐसे बीच में कहीं पर भी नहीं आ रही है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के पास आ रहे हैं. यू सी द स्क्रिबल्स, लाइक फर्स्ट इज हिंदी, सेकंड इज इंग्लिश, and third is science and fourth is math. Okay, अगर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देते तो ये और ज्यादा बढ़ जाते. जितने सब्जेक्ट है उतने ही आपके स्क्रिबल्स आ रहे हैं. In one line, if a four type of data on a horizontal axis, तो उतना ही आपको स्क्रिबल मिलेगा. लाइक अगर मैं इसमें सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, आपको शो करता हूँ, अगर ये स्क्रिबल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. Okay, if I add the other subject like computer add कर देते हैं इसमें, and the marks is like 56, 78, 89 and 98. Okay, this is the marks. मैंने एक subject add कर दिया, and now we move on the scattered. You see the scribble अब पहले 4 थे, 5 हो गए. ये बेसिकली नीचे हॉरिजॉन्टल डेटा के अकॉर्डिंग आ रहे हैं. ओके, जितने आप सब्जेक्ट ऐड करोगे, जितना हॉरिजॉन्टल में डेटा ऐड करोगे, उतने ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड होते चले जाएंगे. ओके, नथिंग एल्स. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आप प्रैक्टिकली इफ यू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप इन योर होम, यू कैन सिंपली प्रैक्टिस ऑन दैट. आप सिंपल डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको क्लियरली इसके बारे में समझ में आ जाएगा. जब आप खुद से करोगे तो आप बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे. अभी भी आपको काफी बच्चों को अभी भी समझ में आ गया होगा, बट अगर आप जब करोगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज radar chart. A radar chart plots data in concentric irregular circles. Each data series has its own value, arises from the center point. Lines connected all values in the same series. टेस्ट टर्म्स को लगा के देखते हैं, आपको फिर पता चलेगा इसके बारे में. फिर हम बात करेंगे. पहले आई शो यू. यस बेटा. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रडार? बेटा रडार मींस नॉट द रडार. मीनिंग ऑफ रडार? Radar नहीं, radar. This is the radar. You see the in the army they use a radar for identify the which aircraft is coming in his border area. रडार बेटा, रडार बेसिकली आपका रेडियो वेव्स को यूज करता है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. वहां से नेम लिया है रडार. ओके सर. ओके, बेसिकली ये शेप इसकी शेप की वजह से नाम रडार है. ये जो सर्कुलर शेप है, जो मूव हो रहा है इसकी शेप की वजह से नाम इसका रडार चार्ट है. ओके, बिकॉज़ इट्स अ कॉन्सेंट्रिक इरेगुलर सर्कल्स. ये एक तरह से इरेगुलर सर्कल्स हैं. दैट मींस ये एवरी कलर लाइन इट रिप्रेजेंट लाइक अ सर्कल. एक सर्कल क्रिएट कर रही है, बट ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, इरेगुलर सर्कल है. लाइक प्रॉपर सर्कल नहीं है, इसलिए इसे इरेगुलर सर्कल बोला है. ईच डेटा सीरीज हैज इट्स ओन वैल्यू. हर डेटा सीरीज की अपनी वैल्यूज है. लाइक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो वैल्यूज भी अलग अलग हो जाएंगी. ओके, लाइंस कनेक्टेड ऑल वैल्यूज इन द सेम सीरीज, और उसी सीरीज में लाइंस भी कनेक्टेड है. इसमें हम 4 ही टाइप डेटा लेते हैं. First, I see where is the radar chart.
Okay, this is a radar chart. Because in this in my data we have a 4-5 सब्जेक्ट, मैंने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो रडार चार्ट का जो डिस्प्ले का वे है वो भी चेंज हो गया. अगर मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, it is like a Spider-Man that like if I delete the one column, it's look like this. Okay, yeah, it's look like a web, something. I again add the radar chart. Okay, now you see the radar chart. Okay, in which you see the axis, different data labels. आप इसमें change कर सकते हो जैसा हमने change किया है. इसमें you see the it's like a diamond shape. कुछ diamond shape की form में ये show कर रहा है आपको. And इसमें आप marks का distribution देखते हो किस type से distribution हो रहा है. Basically सारे chart data को represent कर रहे हैं. Every chart represent the data, but on a different way. Okay, you see the column chart is showing the data in a different way, line chart is showing the data in a different way, pie chart का जो तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का वो अलग है. सब चार्ट का अपना अलग अलग रिप्रेजेंट का तरीका होता है. डिपेंड करता है आपको और सामने वाले को कौन सा क्लियरली समझ में आ रहा है. तो आपको कौन सा यूज करनी चाहिए जो सबको समझ में आ जाए. ऐसा नहीं यूज करना चाहिए जो आपको भी समझ में ना आए. ओके, जैसे ये थोड़ा आपको कंपैरिजन है, जो आपको ये चार्ट डेटा का स्ट्रक्चर है ये सामने दिख रहा है, ये थोड़ा आपको जब कोई फर्स्ट टाइम देखेगा तो कंफ्यूज करेगा. इसे आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले को कि ये है. जबकि आप सिंपली अगर उसे कॉलम चार्ट दे दोगे तो उसे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. वो आप किसी को बताओगे भी नहीं ना क्या देखना है इसमें, तो उसे सिंपली दिखता है कि हाँ इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इसके मार्क्स कम आ रहे हैं. एंड द 3D सरफेस चार्ट, it's a topographic map. It's look like the map of the earth. The topographic map. Yes बेटा, और इसको हम डेटा सीरीज ही बोलते हैं. एक डेटा को सीरीज फॉर्म में लिख देना मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने को डेटा सीरीज बोल देते हैं. Okay, so next in 3D surface chart, it show the 3-dimensional view. ये आपको 3-dimensional view दिखाता है आपके डेटा का. अ टॉपोग्राफिक मैप, इट्स लाइक अ, जब भी हम टॉपोग्राफिकल अपनी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर आपको जो वेदर वाली रिपोर्ट है उसमें इस टाइप से चार्ट्स मिले आपको देखने को मिलेंगे. ओके, अगर हम इस डेटा को जो हमारे पास अभी है इसको हम इस चार्ट में कन्वर्ट करें तो किस टाइप से शो करेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूं. लाइक दिस. फर्स्ट I select the data and then move on a chart. You see, इसके भी हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं. You see, इस टाइप से आपने ज्यादातर टेलीविजन में देखे होंगे इस टाइप के चार्ट जो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस. Sir, it is looking very confusing. Yeah, it's confusing. बहुत चार्ट है जो समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये चार्ट बेसिकली किस अदर टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करता है. लाइक अर्थ को जब हम ज्योग्राफिकल एरिया को अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें इस टाइप की चार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसको समझने की मैं यही तो आपसे बोला मैंने, आपको अगर आपको कोई वर्क दिया जाता है और आपको चार्ट रिप्रेजेंट करना है तो आपको इजी से इजी चार्ट रिप्रेजेंट करना है कि जो सामने वाले को बिना किसी प्रॉब्लम बहुत क्लियरली समझ में आ जाए. ओके, हमें ऐसे चार्ट यूज करने चाहिए. हमें पता सब चार्ट के बारे में होना चाहिए कि हाँ ये चार्ट ये इस चीज के लिए ये चार्ट भी यूज कर सकते हैं हम, ये चार्ट भी यूज कर सकते हैं. बट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमें दिखाना है चार्ट्स ये बना के या डेटा को रिप्रेजेंट करना है, क्या उनकी समझ में आएगा ये? अगर हम ये चार्ट किसी को दिखा दें तो उसे तो ऐसा लगेगा जैसे ये कोई, जैसे अर्थ है ये उसका ऊपर का कोई पार्ट दिखा रहे हैं हम उन्हें. ये बहुत अजीब चार्ट लगेगा. अगर हम सिंपल कॉलम चार्ट दिखाएंगे तो उन्हें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, हाँ यार इसमें तो ये बता रहे हैं कि इसके मार्क्स ज्यादा है, इसके मार्क्स कम है. या किसी भी अदर टाइप का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेटा का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, चार्ट टू चार्ट वेरी करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट. बेसिकली स्टॉक मार्केट में इस टाइप का चार्ट होता है. ये भी सही, इसीलिए हम देख लेते हैं किस टाइप से डेटा दिखता है इसके अंदर. इट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी. लाइक स्टॉक मार्केट एक्टिविटी को देखने के लिए हम इस चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इस चार्ट को भी आपको लगा के दिखा देते हैं द स्टॉक मार्केट. बट फर्स्ट वाले में तो इसने यही कह दिया कि अगर हम लगा रहे हैं इसको कि आपको इसे कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में लगाना पड़ेगा. बट इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है डेटा, इसमें आप देख सकते हो इसमें मार्क्स किस टाइप से शो कर रहा है. बेसिकली इस टाइप के चार्ट्स हम स्टॉक मार्केट में शो करते हैं दिखाने के लिए कि जो शेयर्स हैं वो अप एंड डाउन कितना जा रहे हैं, कितना अप जा रहे हैं, कितना डाउन जा रहे हैं. ओके, लाइक दिस. आप डिफरेंट यहाँ से चार्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हो. बेसिकली मेरे पास वर्ड 2019 है. अगर आपके लैपटॉप में 10 या उससे नीचे का वर्जन है तो आपको में थोड़ा अलग दिखाई देगा, बिकॉज 19 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए थे माइक्रोसॉफ्ट ने. ओके, सो दिस इज द स्टॉक चार्ट.
इसमें लिखा भी है इट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग द स्टॉक मार्केट। जो बेसिकली इन्होंने दिखा रखा है, अगर मैं उसको लगा रहा हूँ तो उसको तो सिंपल ये मना ही कर रहा है, किसको तो नहीं लगा पाओगे। इसमें तो अलग अलग चेंजेस बता रहा है ये। You see, to create this stock chart, arrange the data on the sheet in this order: high price, low price, close price. Use data for stock name as label. क्या बोला, अगर आपको अपना डेटा इस वाले चार्ट में दिखाना है तो आपको हाई प्राइस में, लो प्राइस में, जबकि प्राइसेस में है ही नहीं, ये तो मार्क्स है। ओके, तो इस टाइप से डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली दूसरे में करके दिखा दिया। हमें तो बेसिकली देखना है कि चार्ट जब लगाते हैं तो शो किस टाइप से होता है। तो यू सी इट्स लुक लाइक दिस इज द स्टॉक चार्ट। And the next is component of chart. The next topic is component of chart. Charts के कौन-कौन से component होते हैं? First is x axis. अगर हम कोई भी चार्ट लगाएं, पहले एक सिंपल चार्ट में आपको दिखा देता हूं लगा के। ओके, ये एक सिंपल सा चार्ट है। इसमें x एक्सिस और y एक्सिस होती है। जो आपकी वर्टिकल दिख रही है, जो आपको लाइन है यहाँ पर 0, 10, 20, पहले हम देख लेते हैं। The x axis is the horizontal axis. जो नीचे वाला है यहाँ पर, जहाँ पर वो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस में, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, इज आल्सो नोन एज द कैटेगरी एक्सिस, जहाँ पर कैटेगरी शो होती है। एंड द सेकंड इज वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एक्सिस एंड इज आल्सो नोन एज द वैल्यू एक्सिस, जहाँ पर ज्यादातर वैल्यू शो होती है। लेफ्ट साइड पे वैल्यू शो हो रही है, मार्क्स 10, 20, 30, 40, दिस इज द वैल्यू एक्सिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड द वाई एक्सिस आल्सो। ये आपकी वाई एक्सिस होती है। The value of each data series plotted on the axis. जितने भी आपके डेटा वैल्यूज हैं इसके अंदर, लाइक अभी हमारा मार्क्स इसमें इसने कंसीडर किया 100 तक का। अगर मैं यहाँ पर किसी की भी वैल्यू, किसी भी सब्जेक्ट की वैल्यू उठाकर 110 कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 100 से ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ये डेटा वहां तक कंसीडर करेगा फिर। ओके, सो नेक्स्ट डेटा सीरीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा। ये जो पूरा डेटा हमने लिखा हुआ है, ये ग्रुप ऑफ डेटा है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं और जिसपे ही आपका चार्ट क्रिएट होता है। इसी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इस डेटा को यूज करके आपका चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। आपको स्पेशली कोई बार, लाइन तो क्रिएट नहीं करनी, आपको सिंपल डेटा सिलेक्ट करना है और कोई भी एक चार्ट जो आप अप्लाई करना चाहते हो उस चार्ट को अप्लाई क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इज चार्ट एरिया। ये पूरा चार्ट एरिया है जहां पर आपको बार शो हो रहे हैं, ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, ये पूरा चार्ट एरिया है जहां पर आपको पूरा चार्ट शो हो रहा है। दिस इज द चार्ट एरिया। ओके, इसमें आप वैल्यूज अगर ऊपर नीचे करोगे अपनी तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस दिखेंगे बार में, ये सब में होता है। नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया, द एरिया ऑफ चार्ट वेयर द एक्चुअल चार्ट इज प्लॉटेड। दिस इज द चार्ट। ये आपका पीछे वाला जो पूरा एरिया है ये प्लॉट एरिया है, ये बार आपका चार्ट एरिया है। बेसिकली आप यू सी ना, मैं पर्टिकुलर एक बार को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यू सी, जिस भी बार को हम सिलेक्ट करेंगे वहां सामने आपको डेटा में दिखेगा कि कौन सा डेटा, किसका डेटा हमने सिलेक्ट किया है, किसके बार को हमने सिलेक्ट किया है। ओके, सो द चार्ट एरिया। चार्ट एरिया बेसिकली ये पूरा एरिया है, इसके ऊपर जो प्लॉट एरिया जहां पर चार्ट एक्चुअली में बना हुआ है वो आपका प्लॉट एरिया है, जहां पर प्लॉट हो रखा है चार्ट। नेक्स्ट चार्ट टाइटल। इसमें एक चार्ट टाइटल है टॉप पर। चार्ट टाइटल को आप चेंज कर सकते हो, मैंने आपको चेंज करके भी दिखाया था। आप जो मन में आए वो लिख दो, रिपोर्ट कार्ड लिख दो, यहाँ पर स्टूडेंट कंपैरिजन लिख दो, जो भी आपको लिखना है। चार्ट टाइटल, यू कैन चेंज चार्ट टाइटल अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, जो भी आपको लिखना है। एक्सिस टाइटल, आप एक्सिस टाइटल भी लगा सकते हो, बट अभी तो एक्सिस टाइटल है ही नहीं, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पहले एक्सिस टाइटल। अगर मैं शो कर दूं यहाँ पर तो मैं एक्सिस टाइटल भी लगा सकता हूँ। मैंने एक्सिस टाइटल ओके कर दिया तो यहाँ पर मैं एक्सिस टाइटल भी शो कर सकता हूँ। लाइक मैं इस साइड को लिख दूंगा मार्क्स, लाइक मार्क्स, एंड इस साइड पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ये क्या किया मैंने, इन एक्सिस को भी नेम दे दिए, क्लियरली समझ में आया कि ये मार्क्स है, ये सब्जेक्ट है। तो ऐसे भी हम करते हैं। इसमें एक ग्रिड लाइंस होता है, ग्रिड लाइंस हमारे हाथ में होता है। ये जो ग्रिड लाइंस आपको शो कर रहे हैं ये भी हमारे हाथ में, हम इसे हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। लाइक अगर सिलेक्ट करूंगा सारी ग्रिड लाइन हट जाएगी और लगा देंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। ओके, तो ग्रिड लाइन का हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइंस, ये भी प्लॉट एरिया में जो पूरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं। Now you know what is x axis, what is y axis, what is data series, what is chart area. आपको सब अब क्लियरली पता चल गया है कि चार्ट के कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं और उन्हें हम किस टाइप से चेंजेस कर सकते हैं उनके अंदर। एक लेजेंड होता है, लेजेंड इज टू राइट ऑफ द प्लॉट एरिया। अगर हम लेजेंड इसमें लगाएं, ये होता है लेजेंड, ये इसका प्लॉट एरिया होता है। लेजेंड मींस जो आपको टोटल आपको जो नेम शो हो रहे हैं साइड में, ये आपको हटा सकते हो और लगा सकते हो। जैसे बच्चे का लेजेंड इज द राइट ऑफ द प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया के राइट में आपको ये शो होता है लेजेंड। ये दिस इज द बेसिकली दिस इज द मार्किंग
of the data, the label, जो label है जैसे दीपक, अमित, शालिनी, इनको शो। रोहित सर है बेटा मुझे पता है बच्चे, पता है, मैंने बता दिया है, वही बोला है मैंने। ओके, लेजेंड बेसिकली क्या होता है, फ्लोट एरिया के राइट हैंड पे शो होता है, डेटा सीरीज का ये पार्ट होता है। बेसिकली डेटा सीरीज में लाइक दीपक, विच लाइन, which column represent the Deepak, which column represent the Amit. You can see this thing in a legend, and you can appear or disappear the legend also. Okay, आप इसे हटा सकते हो और लगा भी सकते हो। Data label, this is a text of or the label that provide additional information on data points. Okay, ये सिंपली आपको सारी चीजें यहाँ पर शो भी कर रहा है कि कौन सी चीज क्या है, what is the plot area, what is the chart area, what is the all axis, सारा क्लियर आपको दिख रहा है। जो बैकग्राउंड चार्ट एरिया होता है, जो सामने यहाँ पर आपका चार्ट बना होता है, वो आपका प्लॉट एरिया होता है, यहाँ पर चार्ट को प्लॉट कर रखा है। ओके, इसमें एक आपका डेटा लेबल। डेटा लेबल मींस आप डेटा लेबल को भी लगा सकते हो और हटा सकते हो, ये भी आपके हाथ में है। अभी हमारा डेटा लेबल हटा हुआ है, मैंने डेटा लेबल लगा दूंगा तो डेटा लेबल ऊपर आ जाएगा। दैट मींस किस बार का कितना वैल्यू है, ये आपका डेटा लेबल है बेसिकली। ओके, एंड सर मैंने सब ट्राई किया सर, ये सब आ रहे हैं सर मेरे वाले। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे बच्चे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इस चैप्टर की, तो आप उसमें भी दोबारा से, जिसको प्रॉब्लम हुई है थोड़ी बहुत, वो उसको दोबारा से देख लेना, जिसने लेट ज्वाइन किया है। आप इजीली कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। क्रिएटिंग अ चार्ट, अभी मैंने आपको चार्ट क्रिएट करना सिखा दिया है, ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया। स्टार्टिंग से हम टॉपिक बाय टॉपिक चले। नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक इस टाइप की डेटा की, जैसे डेटा हमने लिखा है यहाँ पर, ये इस टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी एक डेटा क्रिएट करो, उसको सिलेक्ट करो, और जो भी चार्ट आपको यूज करना है, एनीवन, क्लिक ऑन दैट। बेटा सिंपल, फर्स्ट यू हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, द टॉपिक इज ओके, द मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट। The method of creating a chart is simple. First, create a data series like this. जैसे डेटा सीरीज मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट कार्ड क्रिएट किया, आप किसी भी टाइप का डेटा सीरीज क्रिएट कर सकते हो। ओके, सेलेक्ट दैट एंड क्रिएट अ एनी चार्ट। ओके ओके, सो दिस इज फर्स्ट, सेलेक्ट द डेटा एंड सेलेक्ट एनी चार्ट। जो भी चार्ट आपको इसमें लगाना है, अप्लाई करना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, like this, anyone use it, like this। काफी सारे चार्ट अवेलेबल है। डोनट सर, जो डोनट चार्ट है ना सर, उसमें ना सर अगर एक का आ रहा है सर, उसके साथ हम और भी ऐड कर सकते हैं ना। बेटा कितने ही ऐड कर लो, अभी सिर्फ हमने 4 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें दिखा रखा है। आप अगर इसमें 10 का दिखाओगे ना, तो आपको 10 का डेटा दिखेगा उसके अंदर, जितने भी कोई भी चार्ट। आप अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करता हूं और बच्चों की, तो आपको वो डेटा ऑटोमेटिकली चार्ट में रिप्रेजेंट होने लगेगा। पर फर्स्ट आपको दोबारा से वो डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट इंसर्ट करना होगा। ओके बच्चे, सो अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये सिंपल हमने पता चल गया, ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल बोथ आर सेम। ओके, यू कैन क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट, इट्स सिंपल। ओके, बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको डेटा में शो कर रखा है, फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा and then select the chart, and after that you can see chart like this. Okay, update your knowledge एक बार रीड कर लेते हैं हम। You can customize any chart, आप डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो चार्ट को। मैंने आपको करके दिखाया था, मैंने वैल्यू चेंज करी, ऑटोमेटिकली कॉलम चार्ट की जो बार थी वो ऊपर चली गई। जिसकी भी वैल्यू, अगर आप ज्यादा वैल्यू कम करोगे तो नीचे आ जाएगी, कम वैल्यू को ज्यादा करोगे तो ऊपर चली जाएगी। You can make change to the format of the chart text, आप फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, लाइक आपको चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो। अभी मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, आप उसका डिजाइनिंग, डिफरेंट डिजाइनिंग अवेलेबल है ना चार्ट की। आप देखते हो जैसे कॉलम चार्ट अगर लगाते हो तो उसकी डिफरेंट डिजाइनिंग है, वो भी चेंज कर सकते हो। कोई डिफरेंट टाइप का चार्ट भी यूज कर सकते हो, लाइक अभी और सर डिफरेंट कलर्स भी है। यस, डिफरेंट कलर्स भी हैं, तो काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके लिए इसमें। तो सो यू कैन एंगल टेक्स्ट, यू कैन टेक्स्ट कलर, यू कैन एडजस्ट द कलर, यू कैन पैटर्न चेंज कर सकते हो, लाइन डिस्प्ले चेंज कर सकते हो, एनीथिंग, लेबल, टाइटल, कॉलआउट्स, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप चार्ट टाइटल चेंज कर दो, लेबल चेंज कर दो, डेटा लेबल चेंज कर दो, ये सब आपके हाथ में है। Okay, you can do these all modification, only change the data in your Excuse me, sir. Sir, it automatically, sir, calculate all the things. Yes, beta, it's automatically. And now you know how to move. Moving is very easy. First, insert a chart,
एंड अगर आपको अपने चार्ट को मूव करना है, सिंपल इसे उठाओ यहाँ से और कहीं पर भी बिठा दो जाके, I have tried this. Yes. लाइक दिस। ओके, अपने चार्ट को आप कहीं पर भी घुमा सकते हो। लाइक मुझे चार्ट यहाँ से हटाना है, मैंने यहाँ रख दिया, आपको यहाँ से हटाना है, यहाँ पर रख दिया, तो आप चार्ट को इजीली चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो। बहुत इजी है चार्ट को मूव करना। Yes. ओके, We can add y-axis and x-axis, na? वेट बेटा, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। We can add y-axis. Yes, definitely we can add. Y-axis is automatically added. You can named it. Y-axis तो add हो जाता, अब automatically add आता है। बट आप क्या करते हो, सिर्फ उसे नेम देते हो। अगर y-axis अभी y-axis है, y-axis में आपको मार्क्स शो हो रहे हैं, आपको अगर उसका नेम देना है तो आप सिंपल यहाँ पर नेम दे सकते हो उसका, जैसे मैंने अभी आपको डालकर By दिखाया था। clicking on add button, sir, can you click on all options? Which all options? So which is written, sir, data table. Sir, can you allow all? Data table, error bars, and trend lines. Trend lines is typically on the particular subjects. It's look like this. Okay, Sir, sir. can you repeat again? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबको अलाउ कर दिया लाइक दिस। मैंने सबको अलाउ कर दिया, जितने भी ऑप्शन थे सबको अलाउ कर दिया है। आप इन्हें हटा भी सकते हो, जैसे मैं हटाता हूँ, डेटा लेबल भी हटा दिया, डेटा एक्सेस हटा दिया, पहले से स्टार्ट आ गया। Sir, can you repeat again? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जितने भी ऑप्शन थे सबको अलाउ कर दिया था, सब पे टिक कर दिया था लाइक दिस, सब पे टिक कर दिया था, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये मैंने यही किया था। ओके, चार्ट आपको फिर इस टाइप चार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाता है। चार्ट रिप्रेजेंटेशन हैज चेंज नाउ। ओके, एंड इफ यू redefine and redesign this chart, untick the all labels, all things that you tick like data labels, data tables, सब खत्म हो जाएगा। बस ये सब आपके हाथ में है, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, it's all in your hand. ओके, मूविंग और रीसाइज, मूविंग आपको पता ही है, बेसिकली कर सकते हैं। इसमें कॉर्नर में डॉट्स आ रहे हैं, इनके थ्रू आप रीसाइज भी कर सकते हो। लाइक मैंने साइज इसका बड़ा कर दिया, एंड नाउ इफ आई वांट टू, अगर मुझे छोटा करना है साइज को तो इसे भी बहुत इजीली कर सकता हूँ। अब मैंने छोटा कर दिया, ये बहुत इजी है। रीसाइजिंग इज इजी ऑन द चार्ट। ओके, यू कैन नॉट मूव रिसाइज चार्ट ऑन ओन शीट। ओके, you cannot move or resize chart to create on their own sheet. अब मैंने जैसे इस शीट पर इस डेट चार्ट को क्रिएट किया है, तो मैं इस शीट से चार्ट को हटा नहीं सकता क्योंकि ये इस शीट का चार्ट है, तो बस मैं यहां से इसे मूव नहीं कर सकता, इस शीट में कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। ओके, सो रीसाइज द चार्ट, यस रीसाइज इट। अभी हमने रीसाइज ही किया था, यहाँ पर इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड और कम कर सकते हो, like this. Okay, update your knowledge. You can press and shift key while dragging any corner handles of the selected part chart. आप hold press आप shift key को hold करके भी किसी भी पार्ट के चार्ट को हैंडल कर सकते हो। लाइक अगर मैं shift key को प्रेस कर लूं like this, एरो की को मैं यूज करूंगा तो मैं सिंपल एरो की यूज कर रहा हूं। इफ आई यूज द राइट एंड लेफ्ट एरो की, इट्स लुक लाइक दिस, इट्स इंक्रीजिंग, एंड इफ आई यूज द अप एंड डाउन, इट्स लुक लाइक दिस। ओके, बट फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट की। ओके, देन यू कैन डू लाइक दिस। आप ऐसे भी इसके साइज को रिसाइज कर सकते हो। चेंजिंग द टाइप ऑफ द चार्ट, अगर आपको टाइप चेंज करना है तो आप सिंपल डिजाइन के थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज इंसर्ट में भी ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई टाइप चेंज करना है लाइक दिस, काफी टाइप्स अवेलेबल होते हैं चार्ट के। जो भी आपको चार्ट स्टाइल यूज करना है या कलर यूज करना है, यहाँ से आप इजीली, यहाँ से चार्ट टाइप चेंज करना है तो आप इजीली कोई भी चार्ट का टाइप, डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी चार्ट आपको चाहिए। रडार चाहिए रडार ले लो, एरिया चाहिए एरिया वाला ले लो, बार चाहिए तो बार वाला अवेलेबल है, पाई इज अवेलेबल, लाइन इज अवेलेबल। ओके, you can change the size, change the type also. ओके, डिजाइन टाइप में आपको टाइप मिल जाएगा, यहाँ से आप सिंपल इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो। अभी आप बार यूज कर रहे हो एंड नाउ इफ यू वांट टू यूज द लाइन चार्ट, यू कैन क्लिक ऑन द लाइन चार्ट, चेंज द चार्ट टाइप, द चार्ट इज कन्वर्टेड इनटू लाइन। इफ यू वांट टू यूज द अगेन द बार चार्ट, आपको दोबारा से सेम
column chart use करना है, simply click on that and click on OK. It's convert into a now in a bar chart. Okay, please off your mic, बच्चे. जिसने भी mic on किया है, please off your mic. Is that use of the scattered chart? Scattered chart. Scattered or scattered chart? Smarter. Smarter. Which is smarter? Where you read the smarter? This is not a smarter. This is scatter. SCATTER. Beta, this is not a smarter. It's a scatter. Understand? I am talking about the topic. not Topic, change. beta. Page number 57. Okay, okay. अभी move on करेंगे इस पे, इसको करते हैं. 57. We can also right click a chart and click change chart type. Yes, we can click it. ये मैंने अभी करके दिखाया आपको. How do we do? Change the style of a chart. Yes, we can change the style also. Jivan. Beta, off your mic. Jeevan, off your mic. Okay, you can change the chart style also like this. Different styles available. Okay, you can change the chart style also very easily. अभी रुक जा, अभी मैं बता रहा हूँ. ठीक है. Next is update your knowledge. Many charts use a 3D effect. Like 3D effect भी हम डाल सकते हैं. All 3D effects are available. Okay, like if you want to choose the 3D style. 3D style is available there. Yes, beta. Sir, can you repeat again about donut chart? बेटा पहले बातें कर लो. अब किसे बुला रहे थे? क्या हो गया था आपको? अब क्या बातें कर रहे थे? कौन है जीवन? क्यों बुला रहे थे जीवन को? Is your brother? Sir, no. Why you open your mic and tell the name of जीवन. आप ही थे ना? I don't know what you mean. बेटा झूठ बोल रहे हो आप. Okay, so you can change the model also, like different types के 3D and different types के models भी available है. आप उसके according change कर सकते हो अपने chart को. बेटा donut chart is simply the data representing the circular form. The lines, every line is see on the circular shape look like this. I show you the donut chart. It's look like this. Okay, the every line represents the one person. Like if I move the cursor on that line, it represents the Deepak, Shalini. So every separate color represent the different person. Central ring, जो सबसे अंदर वाला ring है, it represent the Hindi marks. उसके बाहर वाला represent the English. उसके बाहर वाला science. And the last one is math. Okay, सबके marks उसमें lines में automatically percentage भी show कर रहा है. What is the percentage of Deepak? Is 28. Okay, in mathematics. So the highest marks of mathematics is Abhi. So Abhi percentage is higher than the others. It's a 29%. Okay, so percentage show करता है अभी. Percentage भी show करता है. Like a pie chart. जैसा pie chart में show करता है. Okay, sir. Okay, next topic is changing the layout of chart. Yes, you can change the layout also. Okay, easily आप layout भी change कर सकते हो. Like in a design tab. On a design tab, if you click on that, in a design tab you have a layout option like this. You can change the layout also. Like any chart you can change the layout. Like ये layout आपका donut chart का available है, and you can change the layout of any chart. जिस भी आप different layouts available है, आप यहाँ पर layout भी change कर सकते हो. 10 minutes. Okay, so next is now you know how to changing the layout. Okay, next is adding title to the chart. मैंने आपको title भी ऐड करके दिखाया था. Title कैसे ऐड करते हैं? Title तो बहुत सिंपल है. आप बहुत इजीली कर सकते हो. Simply click करो यहाँ पर चाहे title ऐड कर दो. It is not a hard. And otherwise, Windows 10 के according भी steps available है. Okay. Next is inserting smart art. Smart art.
this topic is a smart art can be added to track the hierarchy of an organization or method of workflow, process, list or cycle. Excel shows you some shapes to which you can add your own text, which is the smart art graph. Smart art graphic can be added to hierarchy, like if you see on the picture, okay, like this. Okay, with the help of smart art, okay, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो रिप्रेजेंट करना है, उनकी लाइफ लिस्ट ऑफ और साइकिल रिप्रेजेंट करने, तो हाउ द वर्क द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक वर्क है या ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी या बड़ी, वो कैसे वर्क कर रही है, उसकी हायरार्की शो करनी है, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज करते हैं. दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम द योर ग्राफ. ये ग्राफ्स थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग टॉपिक है. चूज द स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन अ टाइप चार्ट. आपको किस टाइप का उनका वर्क फ्लो रिप्रेजेंट करना है, उनका चार्ट का स्टाइल भी डिफरेंट ही होता है बिल्कुल, एंड आप कोई भी चार्ट इसमें यूज कर सकते हो. ओके, लाइक दिस, जैसे ये रिप्रेजेंट कर इसमें इन्होंने दिखाया है, लाइक कोई भी एक आप इसमें वर्ड, इसमें इन्होंने स्मार्ट आर्ट में एक चूज किया है, इट्स आई थिंक ट्रेस, दिस इज नॉट क्लियर मी आल्सो, ये मुझे भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. ट्रांसपर्स लिस्ट, Pepper's list, I think the name of smart art chart. आप simply से smart art chart ऐसा consider करो. इन्होंने एक smart art consider किया, इसमें smart art chart लगा दिया आपके Excel में. Okay, simply जो in my laptop I have a Windows 10, sorry, not a Windows 10, it's 2019 version of the window, and smart chart is options. There is option of. Okay, this is a smart chart. Okay, this option is small in this. Yeah, this is the smart chart in which you show there are different type of smart graphic, like list. If you want to represent the data in the list, you can click on that. If you want to display the process, okay, click on that. If you want to display the cycle, आपको cycle में data represent करना है, click on that. Like I select the data and see it, इस पे काम करेगा. स्मार्ट आर्ट में इसका नेम इन्होंने प्रॉपर ऑप्शन को छोटा कर दिया. इफ आई चूज दिस, इफ आई चूज दिस, इफ आई चूज दिस. ओके, तो बेसिकली ये अलग ही डेटा को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको सेपरेट कोई डिफरेंट टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करना है, एस्पेक्ट का जो आपने एक्सेल में डेटा रिप्रेजेंट किया है, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं. अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक इफ आई राइट द लैंग्वेज, and in the below one I write the English and Hindi. No, this is not a heading. I write the English and in the below one I write the Hindi and this write the Sanskrit. Okay, so with the help of this feature you can add different type of the style. आप अपने डेटा को एक स्टाइल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसमें काफी स्मार्ट आर्ट में डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं. आप कोई सा भी यूज कर लो. लाइक अगर आपको किसी का प्रोसेस शो करना है, लाइक अगर आपको इनपुट आउटपुट इस टाइप से कुछ लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो, लाइक इनपुट प्रोसेस आउटपुट. आपको इसका एक फंक्शन शो करना है कि पहले इनपुट होता है, देन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट द आउटपुट. आप इसमें भी इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड कलरिंग, यू कैन चेंज द कलरिंग आल्सो लाइक दिस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अवेलेबल है यहाँ पर. कोई भी एक कलर जो आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर उसे चूज कर सकते हो. ओके, इस टाइप से आप इसमें डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. उसमें डिफरेंट्स हैं, जरूरी नहीं है आप यही करो. काफी सारे स्मार्ट आर्ट में अवेलेबल है. आपको डिपेंड करता है आपको किस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करना है. पिरामिड की फॉर्म में, पिरामिड की साइकिल. If you want to represent a data in the pyramid, wait beta. If you want to represent a data in a pyramid form, you can use the pyramid. If you use the hierarchy, like the topmost one and the after that the below one, I show you. Okay, like if you use the hierarchy like this, this is the hierarchy. Like the topmost is the hardware or the memory,
एंड इसके नीचे आप डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स अलग अलग लगा सकते हो। लाइक उसके नीचे आएगा आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। टेस्ट लिखो। बेटा सिंपली टाइप, यू कैन क्लिक एंड सिंपली टाइप ऑन दैट। आप इसमें सिंपल लिख सकते हो और सिंपली टाइप कर सकते हो, कोई इसमें इतना कुछ नहीं करना। आपको चार्ट सिंपल इंसर्ट करना है, ये स्मार्ट ग्राफिक ऐड करना है, इसमें इंसर्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के कलर भी अवेलेबल है। लाइक दिस कलरिंग भी डिफरेंट टाइप की आप कर सकते हो इसमें। लाइक जैसा मैंने इसमें चेंज कर दिया है। सर कहाँ से होगी कलरिंग चेंज? बेटा चेंज कलर का ऑप्शन आता है, दिस इज द चेंज कलर ऑन अ डिजाइन टैब। ऑन अ डिजाइन टैब बेटा जब आप इंसर्ट करोगे इसे, डिजाइन टैब ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिस इज स्मार्ट टैब टूल, यू सी द डिजाइन टैब and in which you see the smart style and layout also. You can change the layout also like this. आप layout भी change कर सकते हो and coloring भी change कर सकते हो। and में different layouts available है। आपको जो भी यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो उसके अंदर। इसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो if you want to add the picture. Okay, you see from the ये आपको आपके कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा, तो वहां से जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने करके देखा था तो सर हो गया था। ओके वेरी गुड, हो जाता है बेटा, इतना हार्ड नहीं है ये। सिंपली आपको बुक में भी स्टेप्स आपके सब अवेलेबल है। सो व्हाट इज द स्पार्क लाइन? बेसिकली स्पार्क लाइन इज अ टीनी वर्ड साइज चार्ट्स दैट कैन अपीयर इन अ सेल। इट इज वेरी इजी टू क्रिएट। इनको क्रिएट करना बहुत इजी है। दैट मींस व्हाट इज द स्पार्क लाइन? ये छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं जो एक सेल के अंदर ही होते हैं, बस एक सेल के जितने साइज के अंदर आ जाते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट इट। इनको क्रिएट करना बहुत इजी है। एंड 3 टाइप्स के आपके स्पार्क लाइन चार्ट्स होते हैं, लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट। अब आपको जहां पर स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन दैट सेल। लाइक आई वांट टू क्रिएट अ स्पार्क लाइन चार्ट ऑन दिस सेल। ओके, फर्स्ट क्रिएट ऑन that and then create an insert tab. This is the insert tab. Because this is my Windows Word 2019, so this feature is different from the 2007 or 10. So in which you see the sparkline group. This is the sparkline group. Okay, and in which you see the line, column and win loss. Okay, so first I use the line chart. Click on line and first give the data range. That means आपको इस सेल में किसका डेटा रेंज का चार्ट दिखाना है। लाइक मुझे डेटा रेंज मेरा क्या सेलेक्ट करना है, लाइक फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। ओके, नीचे आएगा लोकेशन रेंज। लोकेशन रेंज मींस कहां पर आपको चार्ट लगाना है। एंड डेटा रेंज मींस किस डेटा पे चार्ट लगाना है। मुझे सिर्फ इस डेटा का चार्ट सामने कॉलम में चाहिए, इसके साइड में। क्लिक ऑन ओके। नाउ यू सी ये आपका स्पार्क लाइन चार्ट। दैट मींस इसमें आपको प्राइस शो कर रहा है। ये पहले प्राइस थी 3000, देन 6000 एंड देन 2000 एंड देन 500। ये छोटा सा स्पार्क लाइन चार्ट है। बेसिकली आपको ऊपर नीचे दिखाता है, इतना क्लियर नहीं है ये। बढ़िया, inserting spark line, it's create like this. Now you understand how to create a spark line. Now if I want to create a column spark line, so click on that cell. अब मुझे सेकंड वाले में कॉलम वाला लगाना है। फर्स्ट क्लिक ऑन insert and now choose the column one and give the range. अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पे कॉलम वाला लगाना है। मैं आपको अलग में लगा के दिखाता हूँ, इस वाले में लगा के दिखाता हूँ कॉलम वाला, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉलम, चूज द डेटा, क्लिक ऑन ओके। लगाना बहुत इजी है। दिस इज अ कॉलम चार्ट इन विच यू सी द प्राइसेस। प्राइसेस देखो कॉलम्स 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है कॉलम ऑटोमेटिकली। ओके, 4 पार्ट में कॉलम डिवाइड हो गया है। द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द मॉनिटर प्राइस, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द प्रिंटर प्राइस, third column represent the mouse price and the last is represent the keyboard price. And थोड़ा इसमें आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर यू। आपको थोड़ा इसमें ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। आप देखोगे जो माउस वाला कॉलम है वो बिल्कुल थोड़ा सा उठा हुआ है और कीबोर्ड वाला थोड़ा ज्यादा उठा हुआ है, बिकॉज प्राइस में डिफरेंस है। यस, प्राइस में डिफरेंस है। एंड सेम डिफरेंस यू सी इन अ लाइन चार्ट आल्सो, इन लाइन स्पार्क लाइन आल्सो। Okay. Yes, and if you want to apply this on in all column like the formula, click on that and drag it, and जितने भी आपके प्राइसेस है उसमें ये फॉर्मूला, ये स्पार्क लाइन अप्लाई हो जाएगा। लाइक डू दिस। ओके, यू सी अब डिफरेंस देख सकते हो, बिकॉज प्राइसेस में चेंजेस है सेल बाय सेल। अगर आप किसी के प्राइस में चेंज करोगे, लाइक मैं 700 को कर देता हूँ 8000, यू सी द डिफरेंस ऑटोमेटिकली। जैसे ग्राफ में होता था, यहाँ पर भी कॉलम ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएगा।
इसको समझना बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। अब आपको ये इजी लग रहा होगा बिकॉज यू अंडरस्टैंड इट हाउ टू डू इट। ओके, एंड इसमें एक विन लॉस वाला है। विन लॉस थोड़ा अलग है। अगर हम विन लॉस चलाते हैं यहाँ पर भी डेटा रेंज देना है हमें। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट हु इज विन हु इज लॉस। लाइक इस विन लॉस रिप्रेजेंट द ऑल डेटा इज द सेम स्केल। आपको इसमें डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा। ओके, जहां पर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन जीता है कौन हारा है, विन और लॉस, तो वहां पर हम इसे यूज करते हैं। ये तो इफेक्टिव नहीं है। बेसिकली ज्यादा इफेक्टिव डेटा रिप्रेजेंटेशन में लाइन एंड कॉलम चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट इफेक्टिव है। ओके, सो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर कहाँ पे है। हाँ, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें सारे ऐसे लग रहे हैं सब इक्वल है। ओके, so next is now you know how to insert a spark line and what is the use of spark line chart. Okay, it is very easy to use. Update your knowledge. With Excel you can also add trend lines to your chart. Trend line also help you to see both sides, the size and direction of change in your data, and you can use them to forecast future or past value based on the available data. By creating a trend line, आप trend line भी use कर सकते हो। वो basically आपको help किसमें करता है? आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में। ट्रेंड लाइंस आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स की दिखती है कि इस प्रोडक्ट की जब इसकी मांग ज्यादा हुई या इसकी जब ज्यादा लोग इसे लेने लगे तो उसको ट्रेंड लाइन में क्या होने लगा, वो ऊपर जाने लगा। जिस बोलते हैं ट्रेंडिंग चल रहा है, ये चीज ट्रेंड में चल रही है, दैट मींस इसको जो पर्संस ज्यादा यूज कर रहे हैं तभी वो ट्रेंड में चल रहा है। ओके, लाइक कोई क्लोथिंग आइटम हो गया, किसी टाइप का फोन हो गया, बहुत ज्यादा सेल आउट हो रहा है, तो इस टाइप से हम ट्रेंडिंग में ट्रेंड लाइन भी यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन फीचर भी इसमें होता है। Okay, you can answer the question like, is there a pattern in recent surge of new orders? like एक पैटर्न में शो करता है, like जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है वो ट्रेंड लाइन में टॉप पर चलेगा। ये एक सिंपल आपका इसका समझने का एक तरीका है। If you want to include new data in chart or exclude data from the chart, you can use edit source dialog box to add, remove entire column or information, or change your data series entirely without changing our chart type or other property. अगर आप कोई न्यू डेटा चार्ट में ऐड कर रहे हो, जैसे अभी हमने एक आपको डेटा ऐड करके दिखाऊंगा मैं अभी, और या कोई डेटा हटा रहे हो, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि डेटा सोर्स डायलॉग्स यूज करो रिमूव करने के लिए एंड ऐड करने के लिए। ओके, इसका बेनिफिट क्या है? ये आपकी डेटा सीरीज को बिना कोई चेंज हुए उसको एज इट इज रखता है, मतलब ज्यादा आपको इफेक्टिव चेंज नहीं मिलता है इसमें। बट ये स्पार्क लाइन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल चार्ट के लिए है। जब नॉर्मल चार्ट यूज करते हैं ये बेसिकली वहां पर यूज होता है, यहाँ पर ये इतना यूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम अभी सिर्फ पढ़ेंगे। स्पार्क लाइन में इसका कोई यूज नहीं है।